हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और सोच रहे होंगे ना कि साड़ी वाड़ी पहन के मैं सुबह सुबह कहाँ चली। तो एक्चुअली आज हमारे यूनिवर्सिटी में नर्सिंग डिपार्टमेंट की तरफ से वर्ल्ड हेल्थ डे का सेलिब्रेशन है। तो कुछ प्रोग्राम है छोटा सा बच्चों की तरफ से, तो इसीलिए मैं साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ और मुझे हस्बैंड छोड़ने आए हैं रिंग रोड पे। और सुबह ना बहुत कम टाइम होने की वजह से बहुत जल्दबाजी होता है तैयार वैयार होने में, और हम लोग इस टाइम में कॉलेज पे चले गए थे। Good morning, ma'am. We are inviting you for our School of Sir Martin University, going to organize a Balancing Day and presenting some posters and health talk for health awareness. ओके, थैंक यू। Thank you. ये जेएनएम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी जो मुझे इनविटेशन देने आई थी। एक्चुअली सारे फैकल्टीज़ को ऐसे ही इनविटेशन जाता है जिसमें हमें साइन करना होता है। तो इनविटेशन के बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, ये है हमारी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मैम, जिनका नाम है डॉक्टर मधुलिका कौशिक, और ये बहुत ही अच्छी हैं। इनका स्पीच था कुछ छोटा सा वर्ल्ड हेल्थ डे पे। प्रोफेशनल लाइफ, इन चीज़ों पे थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है एंड सोचने की ज़रूरत है। डू आई टेक केयर ऑफ माई ओन वर्क इन माई हेल्दी बॉडी एंड टेक केयर ऑफ अदर पीपल्स वर्क ऑल्सो, रादर देन वेट फॉर समबडी टू कम एंड डू माई वर्क फॉर मी, राइट? These are small things, but they go a long way in enabling you to be active, enabling you to be self-dependent, and actually preserving your good health rather than waiting for somebody to come and help me out. So again, I said congratulations on being able to hold this. Most of the things I've said is more of introspection, self-introspection, and say how can we personally invest in our own health rather than, the golden rule is prevention is better than care. So let's try to move towards that. Thank you so much. Infant mortality rate has reduced, and this World Health Day is focusing on at least 80% of delivery, which should be the institutional delivery. And this World Health Day, it is it is focusing on the immunization. That means 100% of immunization of our pregnant mother and newborn, as well as till 5 years of children. So based on this theme, that is healthy beginnings and hopeful futures, our students have prepared the posters and they will explain these posters. So before that, I request our Dean Academic Sir to say please few words to our students to encourage them. Sir, please. Sciences and technology. At many places, our hospital pharmacists, they work in unison with the nursing group because they know a lot about the drugs, you know about the administration, and when you join hands with each other, probably the relief goes to the patient. Patients, this profession is not only about the getting the degree and practicing profession. This profession is full of emotion. Everybody has to be emotion, because when you look at patient looks towards you with very emotional eyes. So your one look gives lot of relief to the patient. So you don't take it as a profession, it's a religion. It's a religion. So my dear friends, it's your day, you celebrate it with the aims and objective to serve the population, to serve the humankind. That is very important. I think many a times I understand the command has gone to Jaya Surin and her group, and this school will grow to further height under her patronage, and I wish you all luck. Try to different from the lot. While coming from Ranchi, I don't know, I see many nursing colleges here and there. I don't know what kind of quality they have, what kind of quality education they are imparting, but certainly I am sure that our university should be better than all those peers around. So it's a very hard time for each one of you to stand alone with all quality practices which you have. Quality is the only thing which comes from within. As you know the proverb, charity begins at home. Similarly, quality comes from within.
You go to someone's drawing room. Sitting in drawing room, you can think of predicting the quality of the people who are staying there. You go to someone's kitchen. Kitchen will tell you the quality of the whole house. Am I right? So this kind of practices you have to adopt, and you are all are budding professional. I wish you all luck. With all due regard to each one of you who are going to join this profession, whenever, in whatever circumstances, if in our small capacity can be of any help, please don't hesitate and come forward. We are always around to help you, to make you very wonderful profession. Thank you. God bless you. Which is basically focusing on the maternal care and the child health care given to both of them. Thank you, sir. सो इस साल का थीम था हेल्दी बिगनिंग एंड होपफुल फ्यूचर्स। तो इसके थीम के अकॉर्डिंग हमारे बच्चों ने कुछ प्रेजेंटेशंस, पोस्टर प्रेजेंटेशंस और कुछ नुक्कड़ नाटक्स वगैरह प्रिपेयर किए थे। तो वही सारे बच्चे जो हैं अभी यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और हमारे जो मैडम हैं, सर हैं, वो लोग इन्हें मतलब इवैल्यूएट कर रहे हैं, और इनका जो इवैल्यूएशन का जो भी रिज़ल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग फिर बच्चों में प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और बच्चे बहुत मेहनत करते हैं ये सब चीज़ करने के पीछे। सिर्फ ये जो दिख रहा है वो कुछ टाइम का नहीं, बहुत वक्त लगता है ये सब करने में। और हमारे स्टूडेंट के सपोर्ट के बिना तो मतलब ये सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट कर पाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल सा था। तो ये सारा कुछ हमारे पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये सारा कुछ मतलब प्रेजेंटेशंस हम लोग करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, जो कि हमारे गांव में किसी गांव में जा कर के होता है। अवेयरनेस फैलाने के पीछे एक और भी रीज़न है कि जो गांव में रहते हैं वो लोग को मतलब प्रॉपर मतलब इन्फॉर्मेशंस नहीं मिल पाता है हेल्थ से रिलेटेड, और या फिर सरकार के द्वारा जो भी स्कीम्स चलाए जा रहे हैं उनके प्रति मतलब उन्हें कोई जागरूकता नहीं होती है, क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया से दूर होते हैं। गांव के लोग और जो भी ओल्ड एज पीपल है वो लोग सोशल मीडिया और ये सब चीज़ों से दूर होते हैं। तो उन्हें कैसे पता चलेगा अगर हम हेल्थ प्रोफेशनल्स जा कर के वहाँ पे अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, उन्हें नहीं बताएंगे सही गलत क्या है, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ये सारा कुछ समझना। तो हमारे स्टूडेंट की तरफ से एक छोटा सा पहल है। ये सारा प्रेजेंटेशंस जो है पहले यूनिवर्सिटी में शो किए जाएंगे, उन्हें इवैल्यूएट किया जाएगा, उसके बाद गांव में जाकर के किसी भी एक विलेज में जाकर के ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा वहाँ के लोगों के साथ में। तो ये सारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म हो जाता है और हमारे जो इवैल्यूएटर्स हैं, सर हैं, वो लोग चले जाते हैं प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद, और यहाँ पे हम लोग सभी कोई निकल जाते हैं गाँव की तरफ। एक पर्टिकुलर गांव हम लोग ने सेलेक्ट किया था जो कि पास में ही था यूनिवर्सिटी के, क्योंकि हमें टाइम से पहुंचना भी है, 4 बजे छुट्टी होती है तो इसलिए हम लोग बगल के गांव में ही हम लोग गए थे। तो यहाँ पे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पे देख सकते हो सारे सीनियर जूनियर सारे बच्चे हैं जो भी नुक्कड़ नाटक में और प्रेजेंटेशन हेल्थ टॉक में पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये सारा कुछ जो है हम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए करते हैं ताकि उनमें अवेयरनेस फैला सकें। तो बच्चों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है और हम लोग एज अ सुपरवाइज़र बच्चों को बताते हैं और बच्चे मानते भी हैं और उससे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ये मेरा बच्चा है पुष्कर, वो बोल रहा था मैम मेरा वीडियो नहीं आया। सो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं हेसल गांव में, और बस हमारी पार्क कर दी गई है और यहाँ पे सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे। और ये जो मनीष है, मनीष को भी वीडियो में आना था, तो यहाँ पे जो है हम लोग पोस्टर्स बनवा के लाए थे। ये फ्लेक्स जो है मैं ही एडिट की थी। आई डोंट नो कैसा लग रहा है ये, बट सही था, काफ़ी मिस्टेक्स भी थी, बट फर्स्ट टाइम था तो चलेगा। तो ये सारे कुछ बच्चे वहाँ पे इंतज़ाम कर रहे थे, कुछ बच्चे लोगों को कलेक्ट करने के लिए गए थे, बुलाने गए थे घर घर से, और यहाँ पे कुछ बच्चे जमा हुए थे और वो बच्चे बहुत खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। हमारे स्टूडेंट ने काफ़ी मेहनत की है इसके पीछे। ये लोग प्रेजेंटेशंस, पोस्टर्स कम समय में प्रिपेयर किए, एंड नुक्कड़ नाटक वगैरह इन्होंने रिहर्सल किया। तो ये सारा कुछ यहाँ पे शो कर रहे हैं। यहाँ पे है फर्स्ट नुक्कड़ नाटक जो हमारे बच्चों के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। लोगों में जागरूकता फैलाएं। गेट के पास
समय पर केंद्र जाइए और वहाँ पे समय समय पर दिखलाइए, चेकअप कराइए, है ना? ठीक है। अब अगले हम 5th सेमेस्टर को बुलाते हैं कि वो लोग आए और अपना किरदार निभाए। मैं पुष्कर बिहारी साहू स्कूल ऑफ नर्सिंग उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी से आया हूँ। आप सभी के बीच में एक नुक्कड़ नाटक लेकर आया हूँ। आप सभी को ये बताने आया हूँ कि हमारे आसपास, हमारे अगल बगल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत अफवाह फैली हुई हैं, जिस वजह से हमें अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर ये नाटक है। हमारे किरदार हैं उषा, एक युवा महिला जिसका किरदार निभा रही हैं पूजा, कर्मी रुक्मणी जिनका किरदार निभा रही है कर्मी जो कि उषा की सास है, एक डॉक्टर जिनका किरदार निभा रहे हैं अंकित दे, और एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिनका किरदार निभा रही हैं पल्लवी सिंह। एक्ट 1 दृश्य के इस तरह शुरू होता है कि जो उषा है हमारी, वो अपने नवजात शिशु को लेकर चारपाई पर बैठी है। तभी रुक्मणी उसकी सास कमरे में प्रवेश करती है। अरे उषा, तुम्हारा बच्चा तो बड़ा प्यारा है, पर ये क्या, तुम उसे अपना दूध नहीं पिला रही हो? नहीं, वो दूध अच्छा नहीं है, इसलिए हमें नहीं लगता उसे दूध पिलाना चाहिए। अरे तुम्हें किसने कहा? बच्चे के लिए माँ का पहला गाढ़ा दूध सबसे ज्यादा स्वस्थ होता है। पर उसके पीले रंग का क्या, जो देखने में बहुत ही गंदा दिखता है, और मुझे लगता है उससे मेरे बच्चे का तबीयत खराब हो जाएगा। बकवास! ये सब तुम्हें कौन सिखा रहा है? यह सब तो मिथ्य है। जो बच्चे को सबसे पहले पिलाना चाहिए वो तुम्हारा गाढ़ा दूध, वो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और बच्चे का ग्रोथ के लिए वही सहायता करेगा। उषा अनिश्चित दिखती है और बच्चे को अपना दूध ना पिलाने का फैसला करती है। तभी कमरे में डॉक्टर प्रवेश करते हैं। उषा, तुम्हारा बच्चा तो बहुत प्यारा है, पर मैंने सुना कि तुम इसे अपना दूध नहीं पिला रही हो, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं सुनी हूँ कि वो दूध अच्छा नहीं होता है और इससे हमारे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं उषा, ये एक आम गलतफहमी है, जबकि पहला दूध तो बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्यदायक होता है बच्चे के लिए। इसे पिलाने से बच्चे की आने वाली कई बीमारियों से भी तुम इसे बचा सकती हो। देखा, मैं कह रही थी ना, मेरी बात तो मानती नहीं। देखो, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं। उषा शर्मिंदा होते हुए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये दूध बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। दृश्य कुछ महीनों के बाद होता है, जब उषा का बच्चा कमजोर और कुपोषित हो चुका है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उषा के घर पर आती हैं। उषा, मैं आपके बच्चे की वृद्धि की निगरानी करने आई हूँ और मुझे चिंता है कि वह वजन नहीं बढ़ा रहा है जैसा कि उसे चाहिए। मैं इसे खाना तो दे रही हूँ, बट ये वजन ही नहीं बढ़ रहा। आइए उसके आहार पर नजर डालें। वैसे क्या खिला रही हैं आप इसे? मैं इसे अपना दूध और गाय का पतला दूध पिलाती हूँ। यही तो समस्या है। आपको उसे संतुलित आहार देना चाहिए जिसमें उचित पोषण है। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में क्या आपने उसे जन्म के बाद दिया था? नहीं, ये मेरे से गलती हो गई थी। मुझे लगा था कि वो पीला रंग का दूध अच्छा नहीं होगा, इसीलिए मैं उसे नहीं पिलाई थी। यह एक महत्वपूर्ण गलती है। कोलेस्ट्रॉल बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने उसे दिया होता तो शायद आज उसकी यह स्थिति नहीं होती। उषा शर्मिंदा, मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़रूरी होता है। यहाँ पे नुक्कड़ नाटक ख़त्म होता है और हमारे बच्चे जो हैं, जो भी विलेजर्स हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस बता रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल जो माँ का पहला गाढ़ा दूध जो होता है प्रसव के बाद 5 से 6 दिनों के लिए, बोला जाए तो 1 हफ्ते के लिए वो दूध आता है, तो वो बच्चों को देने के लिए मतलब वो प्रोत्साहित कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिथ है लोगों में कि वो पीला गाढ़ा दूध सही नहीं है और उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो वो सारे माँओं को अपने बच्चों को पिलाना चाहिए। और यहाँ पे सारा प्रोग्राम्स ख़त्म हो गया है और सारे बच्चे ग्रुप फ़ोटोज़ ले
ले रहे थे और मैं भी कुछ फ़ोटोज़ ली थी अपने स्टूडेंट के साथ, जो कि मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी लास्ट में। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल ऐश्वर्या ऑफिशियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।